Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. In the last lecture, we have done the folded dipole antenna, and we have seen in the last lecture how we are able to draw the radiation pattern for the different length of dipole antenna. So in the last lecture, we have completed the topic till here, how we are able to draw the radiation pattern of different length of dipole antenna. If the length of different dipole antenna is given to you, how you are able to draw the radiation pattern of the respectable length of antenna given to you. So in the last lecture, we have covered for the length of lambda, lambda by 2, 3 lambda by 2, length of 3 lambda. So till here we have completed how to draw the radiation pattern for the different length of dipole antenna given to you. Now today we are going to see some more different types of antenna as given in our syllabus. We have to study some more different types of antenna, how they are draw, how what is the construction of the different types of antenna, how the antenna they are radiating their radiation pattern, and advantage, disadvantage, and application where such type of antennas are used. So in this lecture, we are going to see what are the different types of antenna and their study in terms of construction, working principle, radiation pattern, advantage, disadvantage, and application. Now, the very first type of antenna which we have to study is loop antenna. Oh, now the name is suggesting there is some loop. What do you mean by loop? Loop antenna. A loop is nothing but a single wire which is done in a certain particular shape, certain particular pattern. For example, if you are giving a simple wire a circular shape, so it is nothing but a loop antenna which is in circular shape. Similarly, if you are giving a single wire in a shape like square form, so such antenna is also known as loop antenna in a shape of in a pattern of square. So the category which we are going to understand first, the type of antenna is loop antenna. So loop is nothing but a single wire, single turn of wire, which is giving a proper shape either in circular form, either in square form, either in rectangular form. So such type of antenna are known as loop antenna. So as you are able to see the construction of loop antenna, I am showing to you, I am sharing you the screen. In this screen, you are able to see in this diagram, this is a circular loop antenna. In circular loop antenna, the center part from where you are feeding the current to this antenna means what? This is nothing but a simple wire, which is simple single turn of wire, which is given a shape of circular form. Now for entering the current, from where the current is entering, that point is known as what? Feed point. So this is the center. This is the center from where we are feeding the current to this antenna. Similarly, this is the shape of loop antenna, but this the shape of antenna is in which form? It is in square form. Yes, yes. So the working of this antenna is given to you. A loop antenna is nothing but a single ton coil carrying RF current. The dimension of loop antenna is very much smaller than a wavelength. So as you can see, this antenna is having a very small size, having a very small shape. It is just a nothing but a single ton of wire, which is given either a shape of circular or square or rectangular, whichever the shape we require, we like. So it is a very small in size. Now what is the working over here? When the current flow through the coil of antenna, magnetic field is formed surrounding the antenna. This magnetic field is perpendicular to everywhere to the loop. ओके तो एवरीबडी गेटिंग क्या है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बोल रहा हूँ मैं?
ये लूप एंटीना क्या है, सिंपली एक सिंगल टन ऑफ वायर है जिसको चाहे तो आप सर्कुलर का फॉर्म दे दो, चाहे स्क्वायर का फॉर्म दे दो। अब इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, जब हम लोग करंट इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, जब इसके अंदर करंट को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो सिंगल टन ऑफ वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगी, सराउंड करेगी। ये लूप को मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसको सराउंड करेगी। एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर होगी एवरीवेयर टू द लूप। तो जो जहां जहां पे भी लूप है उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। द रेडिएशन पैटर्न ऑफ लूप एंटीना इज सिमिलर टू द हॉरिजॉन्टल डायपोल एंटीना। तो ये लूप एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न है वो सिमिलर कैसा रहेगा, किसके सिमिलर में रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायपोल एंटीना के सिमिलर में। तो हॉरिजॉन्टल में अगर डायपोल एंटीना प्लेस करते हैं तो उसका रेडिएशन पैटर्न कहाँ पे बनेगा, आपको पता है, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, अगर हॉरिजॉन्टल एंटीना डायपोल एंटीना को हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर में रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ होता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको रेडिएशन पैटर्न मिलेगा। तो लूप एंटीना का भी जो रेडिएशन पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है आपके हॉरिजॉन्टल डायपोल एंटीना के जैसा। तो हॉरिजॉन्टल डायपोल एंटीना के जैसा मतलब इसका रेडिएशन पैटर्न कहाँ पे रहेगा, इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। इट इज हैविंग अ फिगर ऑफ 8 बाय डायरेक्शनल। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखे थे डायपोल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, इट इज अ फिगर ऑफ 8 मीन्स व्हाट, बाय डायरेक्शनल एंटीना, बाय डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न होता है उसका। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन देते हैं। तो इट इज हैविंग अ रेडिएशन पैटर्न ऑफ फिगर ऑफ 8 इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। रेडिएशन पैटर्न के बारे में क्या समझाया हुआ है, नो रेडिएशंस आर रिसीव्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो कोई भी रेडिएशन रिसीव नहीं होगा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। प्लेन ऑफ द लूप का मतलब समझ में आ रहा है, यानी जो लूप जो प्लेन में है, जो डायरेक्शन में रखा हुआ है, उस डायरेक्शन में कोई रेडिएशन रिसीव नहीं होगा। तो यानी क्या होता है, जहां पे आपका प्लेन का एंटीना रखा हुआ है, जहां पे एंटीना आपका प्लेस किया हुआ है, उसके 90 डिग्री उसके परपेंडिकुलर में रेडिएशन होता है। जैसा कि आपको पता है, जब आप इस पर्टिकुलर वायर में करंट सप्लाई प्रोवाइड करोगे, तो करंट सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड सराउंड करेगी वो कैसा सराउंड करेगी, परपेंडिकुलर, ये लूप को परपेंडिकुलर रहेगी। तो दैट्स वाई रेडिएशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर में रहेगा। तो इस प्लेन के डायरेक्शन में कोई रेडिएशन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल में कोई रेडिएशन नहीं होगा। द रेडिएशन इज इन ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लूप ओनली। तो परपेंडिकुलर टू द लूप में ये इसका रेडिएशन पैटर्न होगा। दैट इज वाई ये एंटीना जो यूज होते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, फॉर डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन। तो लूप एंटीना का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जब आपको कोई डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में है, क्या चीज़ है। तो फॉर डायरेक्शन फाइंडिंग पर्पस दिस एंटीना लूप एंटीना इज यूज। तो लूप एंटीना बहुत सिंपल है, इसके बारे में आपको बहुत सिंपली तरीके से खाली समझा देना है। लूप का मतलब क्या होता है, एक सिंगल टर्न ऑफ वायर को कोई पर्टिकुलर शेप देना। तो चाहे वो शेप आप सर्कुलर फॉर्म में दे दो, स्क्वायर फॉर्म में दे दो, तो वो आपका बन जाएगा लूप एंटीना। और इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, इसकी वर्किंग इस तरीके से होती है, वेन एवर वी सप्लाई करंट टू द वायर, इस लूप को जब हम लोग करंट सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सराउंड करेगी। कैसा मैग्नेटिक फील्ड सराउंड करेगी, इस लूप को परपेंडिकुलर में, इस लूप के परपेंडिकुलर में 90 डिग्री में। तो इसलिए इसका रेडिएशन पैटर्न भी कैसा है, बाय डायरेक्शनल है, और कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायपोल एंटीना के जैसा है। हॉरिजॉन्टल डायपोल एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न है वो फिगर ऑफ 8 इन वर्टिकल डायरेक्शन मिलता है। तो इसी तरीके से लूप एंटीना का भी रेडिएशन पैटर्न उसके सिंगुलर लाइक है। और इस लूप एंटीना का मेन पर्पस किस लिए यूज किया जाता है, एप्लीकेशन का है, इसका यूज इन डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन। तो डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस लूप एंटीना, इट इज हाईली डायरेक्शनल। हाईली डायरेक्शनल मतलब समझ में आया, हाईली डायरेक्शनल का मतलब ये होता है जो डायरेक्शन में आपको रिसेप्शन चाहिए उसी डायरेक्शन में रिसेप्शन मिलेगा, बाकी के डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। ओके, तो जो डायरेक्शन में आपको रिसेप्शन चाहिए या ट्रांसमिट कराना है, फोकस कराना है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये फोकस करेगा, रेडिएट करेगा या रिसीव करेगा। दूसरा, इट इज स्मॉल इन साइज, इसकी साइज बहुत स्मॉल है, सिंपली जस्ट एक सिंगल टर्न ऑफ वायर ही है। और इट इज पोर्टेबल, जब स्मॉल इन साइज है तो जाहिर सी बात है ये पोर्टेबल रहेगा, आप इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। तो दिस ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ लूप एंटेना। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज लो गेन, इतना इसका फ्रूटफुल गेन नहीं रहेगा। जिस तरीके से आपको रिसेप्शन चाहिए या जिस तरीके से आपको ट्रांसमिशन चाहिए, उतना सक्सेसफुल इसका ट्रांसमिशन और रिसेप्शन नहीं है। बस सिंपली एक सिंगल टर्न ऑफ वायर ही है जो सिर्फ अपना काम कर रहा है। तो दैट्स व्हाई द गेन ऑफ एंटीना इज वेरी लो। ये डिसएडवांटेजेस है।
और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज वेरी लो रेडिएशन एफिशिएंसी। तो जो अमाउंट से आप करंट फीड कर रहे हो वो अमाउंट से रेडिएशन उसका इतना अच्छा नहीं होता है। जो अमाउंट में आप इसको करंट सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो सिंगल टर्न ऑफ वायर को, तो उतने अमाउंट के हिसाब से ये एंटीना रेडिएट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ वेरियस लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे एटमॉस्फेयर के और खुद के इसके, तो उतना अच्छा रेडिएट नहीं करता जो अमाउंट में आप करंट फीड कर रहे हो। जो अमाउंट में आप करंट फीड कर रहे हो तो उतने अमाउंट के हिसाब से उसको रेडिएट भी करना चाहिए, लेकिन उतना अच्छा रेडिएशन ये लूप एंटेना नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ वेरियस लॉसेस। तो वो लॉसेस की वजह से दैट्स व्हाई इट इज हैविंग अ वेरी लो रेडिएशन एफिशिएंसी। तो इसकी रेडिएशन एफिशिएंसी क्या है, बहुत कम है। एप्लीकेशन में क्या दिया हुआ है, इट इज यूजफुल इन डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। और इन नेविगेशन, जाहिर सी बात है डायरेक्शन फाइंडिंग का एप्लीकेशन बहुत यूज कहाँ पे होता है, नेविगेशन में। जब आप अपना शिप के लिए आपको जो रूट मालूम करना है, पता करना है, तो वहाँ पे जो मेनली ये सब टाइप के एंटीनास वगैरह यूज किए होते हैं। तो इट इज यूज इन नेविगेशन एप्लीकेशन ऑल्सो। आई होप आप लोगों को लूप एंटेना का मीनिंग क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। Now the next type of antenna which we have to study, it is given in our syllabus also, the telescopic antenna, which is also known by the name Marconi antenna. So telescopic antenna, or you can also say it as Marconi antenna. Now ये एंटेना में क्या होता है, जरा ये चीज को डायग्राम को जरा अच्छी तरीके से हम लोग को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। Now what you are able to see in this diagram, this is the अर्थ सरफेस, ये आपका ग्राउंड सरफेस है। जो ये लाइन आपके सामने जो ड्रॉ की हुई है, ये लाइन जो दिखा रही, इट इज रिप्रेजेंटिंग योर ग्राउंड, योर अर्थ सरफेस। नाउ टेलीस्कोपिक एंटेना में क्या होता है, आप इस ग्राउंड सरफेस पे एक एंटेना, एक लेंथ आप उसको माउंट करते हो ग्राउंड पे, जिसकी लेंथ कितनी होती है, λ/4। λ/4 मतलब क्या मतलब होता है, क्वार्टर वेवलेंथ। क्वार्टर वेवलेंथ लेंथ का एक आप एंटेना, डाइपोल एंटेना आप इस ग्राउंड पे माउंट करते हो। नाउ क्या होता है, इसमें एक ऐसा इमेजिनेशन किया गया है, या एक ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि जो एंटेना आप λ/4 का माउंट किए हुए हो, उस λ/4 से माउंट करके आपका ये ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, ये एंटेना को देख रहा है, या जहाँ पे आपको अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करके वहां तक पहुंचाना है। तो ये एंटेना से जो लेंथ जो λ/4 का एंटेना जो आपने ग्राउंड के ऊपर माउंट किया हो, तो ये एंटेना से डायरेक्टली रेस ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है। तो वो एक जो रेस पहुंच रही है उसको कहते हैं डायरेक्ट रेस। जो डायरेक्टली इस लेंथ ऑफ एंटेना से उस ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, उस रेस को बोलते हैं डायरेक्ट रेस। तो विच इज एक्चुअली ये ऑब्जर्वर जो रिसीव कर रहा है ये एंटेना से, उसको डायरेक्ट रेस बोलते हैं। लेकिन हमेशा डायरेक्ट रेस ही नहीं रहेगी, कुछ रेस ऐसी होगी जो क्या होगी, ये अपने अर्थ सरफेस से ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके भी पहुंचेगी। तो जो रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही उस रेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। प्लीज म्यूट, जो भी अनम्यूट किया हुआ है वो म्यूट कर ले, बिकॉज डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे मेरे लेक्चर में। थैंक यू। तो यहाँ पे अभी दो तरीके से रेस पहुंच रही है ऑब्जर्वर तक। एक तो डायरेक्टली ये एंटेना से ऑब्जर्वर तक जा रही है, जिसको डायरेक्ट रे बोलते हैं। और एक जो रेस है, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल में दिखाया हुआ है कि एक रे जो है वो इस ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है ऑब्जर्वर तक। तो जो रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। नो इंटरप्रिटेशन ऐसा लिया हुआ है, इसमें अंडरस्टैंडिंग ऐसा किया हुआ है कि जो रे ये पर्टिकुलर ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, एक इमेजिनेशन ऐसा किया जा रहा है, वो इमेजिनेशन ऐसा किया जा रहा है कि वो नीचे वाला एंटेना, जो नीचे वाला एंटेना यानी ग्राउंड के बिलो भी कोई एक एंटेना है जिसकी लेंथ कितनी है, λ/4। λ/4 की लेंथ ऐसा माना जा रहा है, इमेजिनेशन किया है, एक्चुअल में ग्राउंड के नीचे कोई एंटेना नहीं है। तो जो रे रिफ्लेक्ट होके जो पहुंच रही है ग्राउंड से, तो ये जो एंटेना ऐसा इमेजिनेशन में माना जा रहा है कि सेम हाइट का एंटेना बिलो दी अर्थ भी है, और उस अर्थ के बिलो से वो एंटेना से क्या हो रही है, वो रेस ऐसी पहुंच रही है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल में कैसा है कि ये पर्टिकुलर यही एंटीना जो ग्राउंड के ऊपर माउंट किया हुआ है उससे रेस निकल रही है और वो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही है। लेकिन एक इमेजिनेशन, एक कंसिडरेशन ऐसा किया जा रहा है कि ये एंटीना की मिरर इमेज बिलो दी अर्थ भी है, वो बिलो दी अर्थ, बिलो दी ग्राउंड जो इमेज ऑफ दिस एंटीना है वो क्या कर रहा है, इस रेस को पहुंचा रहा है ऑब्जर्वर तक। समझ में आई बात आपको? तो क्या हो रहा है, इस तरीके से
इस तरीके से जो रिफ्लेक्ट होकर जो पहुंच रही है ना, वो इस तरीके से इमेजिनेशन माना जा रहा है कि द मिरर इमेज ऑफ दिस एंटीना इज बिलो द अर्थ, बिलो द ग्राउंड, एंड दिस एंटीना इज रेडिएटिंग द वेव्स, और ये एंटीना से वो वेव पहुंच रही है ऑब्जर्वर तक, जो रिफ्लेक्टेड रेट। तो डॉटेड में इसलिए बनाया हुआ है, डॉटेड में इस तरीके से समझाया हुआ है। एक्चुअल में एंटीना अपना यही है, ग्राउंड के अबव में जो अपन ने माउंट किया, इंस्टॉल किए, लेकिन मिरर ऑफ द इमेज ऑफ द एंटीना ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, इमेजिनेशन किया जा रहा है। क्यों ऐसा इमेजिनेशन किया जा रहा है? क्योंकि जो रेस इस पर्टिकुलर एंटीना से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, वो ऐसा इमेजिनेशन कंसिडरेशन किया जा रहा है कि वो पर्टिकुलर एंटीना, मिरर इमेज ऑफ द एंटीना, वो क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है और वो रे को पहुंचा रहा है। तो ये सब क्यों इतना सब किया जा रहा है, क्यों इतना समझाया जा रहा है? बिकॉज इसलिए तब इतना समझाया, इतना एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि ये अगर क्वार्टर वेवलेंथ का लेंथ है, ये अगर मिरर इमेज भी क्वार्टर वेवलेंथ का लेंथ हो जाएगा, तो दोनों का कंबाइन करके कितना हो जाएगा? क्वार्टर वेवलेंथ λ/4 प्लस मिरर इमेज ऑफ द एंटीना λ/4, दोनों को कंबाइन करके आपको मिल जाएगा λ/2, यानी हाफ वेवलेंथ वाला। यानी इसका वर्किंग सेम आपके हाफ वेवलेंथ वाले डायपोल एंटीना के बराबर हो जाएगा। हाफ वेवलेंथ वाला डायपोल एंटीना, तो जो चीज़ हम लोग ने हाफ वेवलेंथ डायपोल एंटीना का पढ़ चुके थे, अगर दो क्वार्टर वेवलेंथ लेंथ ऑफ एंटीना को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? λ/2 बन जाएगा, हाफ वेवलेंथ बन जाएगा। तो ये एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर में है, लेकिन मिरर ऑफ द इमेज ऑफ द एंटीना उस ग्राउंड के नीचे भी है। तो इसलिए देखो ये सब डॉटेड में मार्क किया हुआ है। एक्चुअल में आपका इतना हो रहा है, लेकिन डॉटेड में मिरर ऑफ द इमेज ग्राउंड के बिलो में भी है। तो पूरा कंबाइंड वर्क किसका जैसा हो रहा है? हाफ वेवलेंथ के जैसा हो रहा है, λ/2 के जैसा हो रहा है। λ/4 प्लस λ/4 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? λ/2। तो ये लेंथ λ/4 का, ये लेंथ मिरर इमेज λ/4 का मिला के आपका क्या बन गया? λ/2। तो एक्चुअल में इसी पर्टिकुलर एंटीना की लेंथ से हो रहा है काम, लेकिन डॉटेड में वो मिरर ऑफ द इमेज ऑफ द एंटीना से भी ये सब काम हो रहा है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है। तो टेलीस्कोपिंग एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न भी है वो आपको यही मिलेगा। रेडिएशन पैटर्न, इट इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ 8। ये जो फिगर ऑफ 8 बनाया गया है, किस तरीके से बनाया गया है? क्योंकि एंटीना कैसा प्लेस किया हुआ है, अभी आप लोग देखो, एंटीना इज प्लेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो एंटेना जो ग्राउंड के अबव में माउंट करे वो वर्टिकली है, इमेज ऑफ दी एंटेना बिलो दी ग्राउंड वो भी वर्टिकली है। तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनेगा, फिगर ऑफ 8। क्योंकि λ/2 की लेंथ का हो गया, हाफ वेवलेंथ डायपोल एंटीना हो गया। तो हाफ वेवलेंथ डायपोल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है? बाय डायरेक्शनल होता है, फिगर ऑफ 8 होता है। तो ये जो फिगर ऑफ 8 है, ऊपर का पोर्शन आपको एक्चुअल एंटीना से दिख रहा है, और नीचे का जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो डॉटेड जो लाइन में दिख रहा है वो मिरर ऑफ द एंटीना से बना हुआ है। सो ये फिगर ऑफ 8 है, रेडिएशन पैटर्न बाय डायरेक्शनल है। तो एक्चुअल रेडिएशन पैटर्न इज फ्रॉम द एंटीना विच इज माउंटेड अबव द ग्राउंड, लेकिन बिलो द ग्राउंड में भी मिरर ऑफ द एंटीना, मिरर इमेज ऑफ द एंटीना को एज्यूम किया गया है, अंडरस्टैंड किया गया है, और उसका रेडिएशन जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। इसको मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, अभी जैसे एग्जांपल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। So if the antenna is grounded, the earth acts as the mirror and became a part of radiating antenna system। समझ में आई बात? अगर एंटेना को हम लोग ग्राउंड अर्थ के ऊपर माउंट करते हैं तो अर्थ जो है वो मिरर के जैसा काम करती है, रिफ्लेक्टिंग पाथ के जैसा काम करती है, मिरर के जैसा काम करती है, एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ रेडिएटिंग एंटेना सिस्टम। तो यहाँ पे एंटेना, यहाँ पे जो ग्राउंड सरफेस है वो ग्राउंड सरफेस किसके जैसा काम कर रहा है? मिरर के जैसा काम कर रहा है। ये मिरर की इमेज कहाँ पे मिल रही है? ग्राउंड के बिलो में मिल रही है। आपने एंटीना को माउंट किए थे ग्राउंड के ऊपर, लेकिन अब ये ग्राउंड कैसा काम कर रहा है? मिरर के जैसा काम कर रहा है। तो मिरर इमेज जो है वो कहाँ पे मिल रही है? उसकी बिलो द ग्राउंड, ऐसा एजम्पशन किया जा रहा है, ऐसा अंडरस्टैंड किया जा रहा है। द मिरर इमेज ऑफ एंटीना विल बी फॉर्म बिलो द ग्राउंड विच इज ऑफ एग्जैक्टली सेम हाइट ऑफ अबव द ग्राउंड। तो जैसा अबव द ग्राउंड में जो हाइट रहेगी एंटीना की, सेम मिरर इमेज की भी हाइट बिलो द ग्राउंड रहेगी। द मिरर इमेज डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखो क्लियर कर रहा है, मिरर इमेज ऐसा एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं है, बट इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय कंडक्टिंग ग्राउंड। तो ये ऐसा माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है कि ये जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही है तो वो बिलो द ग्राउंड उसकी मिरर इमेज ऑफ द एंटीना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो पहुंचा रहा है उस वेव्स को। ओके फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है? द रेडिएशन पैटर्न ऑफ दिस एंटीना इज सेम एज ऑफ हाफ वेव डायपोल एंटीना, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ एंटीना।
तो ये जो चीज़ है रेडिएशन पैटर्न जो है वो किसके जैसा रहेगा, हाफ वेव डायपोल एंटीना की जैसा रहेगा, और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, लेंथ ऑफ डायपोल एंटीना के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जो लेंथ ऑफ डायपोल एंटीना आप ग्राउंड के ऊपर माउंट कर रहे हो उसकी हाइट ऑफ एंटीना के ऊपर से हिसाब से डिपेंड करेगा ये पूरे टोटल लेंथ ऑफ एंटीना की। तो अभी मैं एग्जांपल दिया λ/4, तो इसके लिए क्या हो गया, λ/2 का एंटीना हो गया, हाफ वेव लेंथ का एंटीना हो गया। So what are the advantages of this antenna? The advantages of this antenna is directivity. Directivity का मतलब मैं समझा चुका था, यानी maximum radiation in a particular direction, maximum radiation in a particular direction में maximum gain, जहाँ पे एंटीना मैक्सिमम रेडिएट कर रहा है उसमें मैक्सिमम गेन को बोलते हैं डायरेक्टिविटी। तो डायरेक्टिविटी यानी मैक्सिमम गेन इन मैक्सिमम रेडिएशन बढ़ जाता है। रेडिएशन पैटर्न इंप्रूव्स एज सॉइल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सॉइल की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा रेडिएशन पैटर्न उसका इंप्रूव होगा। ये क्यों ऐसा समझाया जा रहा है, अगर सॉइल की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी तो उतने अच्छे अमाउंट के हिसाब से आपकी रे रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। अगर ये सॉइल की कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो वो अमाउंट के हिसाब से जो एंटीना रेस को रेडिएट कर रहा है उतने अच्छे के अमाउंट से वो रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। तो रेडिएशन पैटर्न क्या होगा, उतना अच्छा इंप्रूव होगा, रेडिएशन उतना ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। सो रेडिएशन पैटर्न इंप्रूव्स एज सॉइल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, इट इज यूज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होता है फॉर मोबाइल एंटेनास, द फ्लैट मेटल टॉप ऑफ व्हीकल्स इज यूज्ड टू प्रोवाइड द ग्राउंड प्लेन। आप समझ में आया आप लोग को, आप कार के ऊपर जरा एंटेना माउंट किया हुआ देखते हो ना, जो कार के ऊपर टॉप फ्लैट पे कुछ एंटेना माउंट किए हुए दिखते हैं, तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ टेलीस्कोपिक मार्कोनी एंटेना। समझ में आई बात। हम लोग व्हीकल के ऊपर देखो एंटेना, वो जो स्ट्रेट एंटेना टाइप का हम लोग उसको देखते हैं, वो जो फ्लैट टॉप एंटेना जो माउंट्स किए हुए होते हैं, तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ टेलीस्कोपिक एंटेना। सो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है, और फॉर मोबाइल एंटेना, मोबाइल का मतलब मोबिलिटी, जो मूवेबल है, मोबाइल का मतलब ये होता है जो मूवेबल है, और फॉर मूवेबल एंटेनास, वो एंटेना जो मूवेबल है, जहाँ पे जैसे कि कहाँ पे नजर आते हैं, द फ्लैट मेटल टॉप ऑफ द व्हीकल्स, यानी जो व्हीकल का जो टॉप फ्लैट है, मेटल जो फ्लैट है वो क्या है, ग्राउंड के जैसा एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर का एंटेना जो माउंट किया हुआ है और उसकी इमेज जो मिरर इमेज है वो बिलो द फ्लैट टॉप मेटल ऑफ द एंटेना फॉर्म होगी, ऐसा इंटरप्रिटेशन है। तो इज यूज्ड टू प्रोवाइड द ग्राउंड प्लेन। तो व्हीकल का जो टॉप फ्लैट मेटल पार्ट है वो इज यूज्ड टू प्रोवाइड द ग्राउंड प्लेन ऑफ दोस एंटेना। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो पाया होगा, समझ में आया होगा कि टेलीस्कोपिक एंटेना कहाँ पे नज़र आता है, कहाँ पे दिखता है और किस तरीके से होता है। अब इसके बाद जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट टाइप का एंटेना जो बताने वाला हूँ मैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। द नेम इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटेना इज यागी उदा एंटेना। Yagi Uda antenna. These are the two names of the scientists which combinedly form this constructed made this antenna. That's why the name is given Yagi Uda antenna. These are the two different names of the scientists which have constructed, which have formed this antenna. That's why the name is given with the names only Yagi Uda antenna. So this Yagi Uda antenna is very very important, and it is very mainly asked in your examination also. And you have seen in the earlier previous days such type of antennas which were used for TV reception, TV receiving, and TV transmitting. So in earlier older days, such type of antennas are used for TV reception and TV transmitting in older days. Might be you have been seen or not, I don't know. But in my childhood, I have seen such type of antennas. सो ये टीवी रिसेप्शन, टीवी ट्रांसमिटिंग के लिए मेनली ये पर्पस, ये टाइप का एंटेना यूज़ किया जाता था, जिसका नाम है यागी उदा एंटेना। ना इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा, यागी उदा एंटेना के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझाऊंगा। यागी उदा एंटेना के कंस्ट्रक्शन के बारे में इस तरीके से है, सबसे पहले जो मेन जो एलिमेंट है वो बीच का जो आपको इधर पे जो दिख रहा है मेन एलिमेंट, जिसका नाम है फोल्डेड डायपोल एंटेना। तो जो डायपोल एंटेना आप स्टडी कर चुके हैं, हाफ वेव डायपोल एंटेना के बाद जो आपने स्टडी किए थे वो कौन सा एंटेना स्टडी किए थे, फोल्डेड डायपोल एंटेना। तो दो पोल होते हैं, दोनों को एक साथ ज्वाइंट किया हुआ रहता है, तो वो क्या बन जाता है, फोल्डेड डायपोल एंटेना। तो सबसे पहले यागी उदा एंटेना में जो मेन एलिमेंट है वो आपका ये फोल्डेड डायपोल एंटेना है। हम लोग ने फोल्डेड डायपोल एंटेना में क्या देखे थे, फोल्डेड डायपोल एंटेना में हम लोग ने ये स्टडी किए थे कि उसका जो रेडिएशन पैटर्न है वो कैसा होता है नेचर में, बाय डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दो अपोजिट डायरेक्शन में वो मैक्सिमम रेडिएट करता है। तो अगर हम लोग
या ये फोल्डेड डायपोल एंटीना को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दे, कुछ इस तरीके से उसके अंदर चेंजेस लेके आ जाए कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेडिएट करे। दो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएट करता है, हमको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोकस करना है, एक डायरेक्शन में ही सिर्फ मैक्सिमम रेडिएट करना चाहिए, दूसरे वाले डायरेक्शन में उतना कम रेडिएट करना चाहिए। क्योंकि दो डायपोल एंटीना का क्या देखे थे हम लोग ने, उसका रेडिएशन पैटर्न बाय डायरेक्शन होता है, दो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएट करता है। तो अगर हम लोग इस फोल्डेड डायपोल एंटीना में कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा चेंजेस लेके आ जाए कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोकस करे, तो वो जो फोकस लेके आया हुआ है वो कौन से टाइप के एंटीना में लेके आया हुआ है, यागी उदा एंटीना में लेके आया हुआ है ना। क्या होता है इसके अंदर वो अभी हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फोल्डेड डायपोल एंटीना बताया, अब इसके आगे ना कुछ प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स आगे लगी हुई है। जो फोल्डेड डायपोल एंटीना के आगे जो कंडक्टिंग प्लेट्स लगी हुई उसको बोलते हैं डायरेक्टर। प्लीज करेक्ट कर लेना, ये डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्टर्स बोलते हैं इसको, डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ प्लेट्स नजर आएगी, डिफरेंट डिफरेंट साइज की प्लेट्स होती है, कंडक्टिंग प्लेट्स होती है। तो उस कंडक्टिंग प्लेट्स को यहाँ पे क्या कहते हैं, जो फ्रंट में होती है 2 से 3 होती है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। और इसी फोल्डेड डायपोल एंटीना के पीछे भी एक कंडक्टिंग एक प्लेट होती है, सिंगल प्लेट होती है, कंडक्टिंग प्लेट होती है, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। तो आगे की तरफ जो फ्रंट साइड में जो दो से ज्यादा जो प्लेट्स होती है वो होती है डायरेक्टर, और पीछे की तरफ जो एक प्लेट होती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। तो ये मिला जुला के ये पूरा कंस्ट्रक्शन है किसका, यागी उदा एंटीना का। तो यागी उदा एंटीना में 3 मेन चीज होती है, एक तो खुद आपका फोल्डेड डायपोल एंटीना, और आगे की जो कंडक्टिंग प्लेट्स है उसको कहते हैं डायरेक्टर, और पीछे की तरफ जो एक प्लेट होती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। तो यहाँ पे देखो, इधर पे इस कंस्ट्रक्शन में और थोड़ा अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है। पहले ये पूरा लेंथ के बारे में समझाया हुआ है कि जो पीछे का जो रिफ्लेक्टर है, पीछे का जो रिफ्लेक्टर है, उस पीछे के रिफ्लेक्टर की जो लेंथ है वो क्या हिसाब से बनाई हुई होती है, 0.55 लैम्बडा, यानी वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू ऑल दी फोल्डेड डायपोल एंटीना डायरेक्टर्स। उसकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे उसकी लेंथ स्पेसिफाई किया हुआ है 0.55 लैम्बडा। अब रिफ्लेक्टर और जो अपना आगे के डायरेक्टर्स है उनके बीच में का गैप कितना होना चाहिए, तो उनके बीच का गैप जो स्पेसिंग है वो कितने के अमाउंट के हिसाब से दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है 0.1 लैम्बडा के हिसाब से। तो 0.1 लैम्बडा के हिसाब से ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर स्पेस्ड प्रॉपर्ली। ये सब क्यों करना होता है मालूम, प्रॉपर रेडिएशन के लिए। अगर ये सब चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, ये सब स्टैंडर्ड है, डिसाइड किया हुआ है, इस तरीके के अमाउंट से स्पेसिंग रहेगी तो ये पर्टिकुलर यागी उदा एंटीना उतने अच्छे के अमाउंट से क्या करेगा, रेडिएट करेगा अपनी। तो जो स्पेसिंग की हुई रहती है सबके बीच में, वो स्पेसिंग कितने के अमाउंट से की रहती है, 0.1 लैम्बडा के हिसाब से की रहती है। अब ये रिफ्लेक्टर का लेंथ 0.55 लैम्बडा था। जो फ्रंट साइड में डायरेक्टर रहेगा, फोल्डेड डायपोल एंटीना के फ्रंट में सबसे आगे की तरफ जो डायरेक्टर रहेगा, पहला वाला डायरेक्टर रहेगा, उसकी लेंथ यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई कितना, 0.5 लैम्बडा। फिर उसी के आगे जो जस्ट रहेगा डायरेक्टर, उसकी लेंथ कम हो जाएगी थोड़ा, वो कितने के अमाउंट से हो जाएगा, 0.4 लैम्बडा। उसी के हिसाब से जो आगे जो डायरेक्टर रहेगा उसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 0.3 लैम्बडा। तो ये सब अलग अलग लेंथ के हिसाब से आपके डायरेक्टर्स रहते हैं। डायरेक्शंस नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लेना, डायरेक्टर्स है। और ये पीछे वाला जो है वो क्या है, वो रिफ्लेक्टर है। और ये बीच में जो फीड वायर आपको नजर आ रहा है, वो फीड वायर किसका है, जहाँ पे डायपोल एंटेना में आपको करंट को फीड करना है, जहाँ से इनपुट हम लोग करंट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो इनपुट करंट सप्लाई हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, इस डायपोल एंटेना को प्रोवाइड करेंगे। तो दैट पॉइंट जहाँ से करंट सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है एंटेना को, उसको बोलते हैं फीड पॉइंट। तो ये जो फीड पॉइंट है, ये फीड वायर है जहाँ से हम लोग करंट सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो पहले तो मैंने आपको पूरा ये कंस्ट्रक्शन के बारे में समझाया, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लो क्या लिखा हुआ है। यागी उदा एंटेना कंसिस्ट ऑफ डायपोल एंटेना, रिफ्लेक्टर, डायरेक्टर। तो पहली बात तो यागी उदा एंटेना क्या क्या चीज से कंसिस्ट किया हुआ रहता है, बना हुआ होता है। पहला तो फोल्डेड डायपोल एंटेना है, पीछे की तरफ एक रिफ्लेक्टर है, और आगे की तरफ क्या है, डायरेक्टर्स है। अब क्या कौन क्या काम करता है वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। The reflector is placed at the back of folded dipole antenna. The director is placed at folded dipole antenna. मतलब यहाँ पे तो पहले कंस्ट्रक्शन ही क्लियर किया हुआ है कि जो रिफ्लेक्टर है वो कहाँ पे प्लेस किया हुआ रहता है, एट द बैक ऑफ फोल्डेड डायपोल एंटेना। तो फोल्डेड डायपोल एंटेना के बैक में क्या प्लेस किया हुआ रहता है, रिफ्लेक्टर। और फोल्डेड डायपोल एंटेना के फ्रंट्स में क्या प्लेस किए हुए रहते हैं, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स को फ्रंट में प्लेस करते हैं, रिफ्लेक्टर को पीछे प्लेस करते हैं। अब जॉब ऑफ क्या है, द डायरेक्टर कलेक्ट्स द वांटेड सिग्नल। समझ में आई बात, डायरेक्टर का काम क्या होता है, इट कलेक्ट्स, ये कलेक्ट करता है। रिसीविंग के लिए जब यूज होता है ना, तो क्या क्या पर्पस के लिए यूज होता है,
इट कलेक्ट्स द वांटेड सिग्नल, जो सिग्नल चाहिए, जो सिग्नल रिसीव करना है, उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए डायरेक्टर्स का मेन रोल होता है। तो डायरेक्टर्स आर यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द डिजायर्ड सिग्नल, वांटेड सिग्नल, जो वांटेड सिग्नल है, जो डिजायर्ड सिग्नल है, उनको सिलेक्ट करने के लिए कौन मेन रोल प्ले करता है? डायरेक्टर रोल प्ले करता है। और रिफ्लेक्टर जो पीछे है उसका काम क्या है? रिफ्लेक्टर रिजेक्ट्स द अनवांटेड सिग्नल। और जो रिजेक्शन की बात चल रही है, जो अनवांटेड सिग्नल जो रिजेक्ट करेगा, नहीं सिलेक्ट करेगा, वो रिजेक्ट कौन करेगा? रिफ्लेक्टर। इसलिए नाम दिया हुआ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का मतलब यहाँ अंदर नहीं लेना, उसको रिफ्लेक्ट करके वापस दूर कर देना है। तो रिफ्लेक्टर का जॉब क्या है? अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करना। और डायरेक्टर्स का जॉब क्या है? जो डिजायर्ड सिग्नल है उसको क्या करना? सिलेक्ट करना, अपने पास लेके आना। तो ये जॉब हो गया आपका डायरेक्टर रिफ्लेक्टर का। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है? द रेडिएशन पैटर्न। द रेडिएशन पैटर्न ऑफ यागी-उदा एंटीना इज मॉडिफाइड फिगर ऑफ 8. रेडिएशन पैटर्न इज डायरेक्शनल. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज फ्रंट लोब एंड स्मॉल लोब। तो यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न जो आपको नजर आ रहा है ये यागी-उदा एंटीना का, ये मॉडिफाइड किया हुआ है बाय डायरेक्शनल का। जो आपको डायपोल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न बाय डायरेक्शनल था, मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन था, अब उसमें मॉडिफिकेशन हो गया। कैसा मॉडिफिकेशन हो गया है? अब एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन मिल रहा है, दूसरे डायरेक्शन में जो पहले इसी के बराबर मैक्सिमम रेडिएशन था वो अब कम हो गया है। तो यानी एक ही डायरेक्शन में अब मैक्सिमम फोकस हो रहा है। यानी इसका क्या काम होता है? डायरेक्शनल। इसका कैसा हो गया? रेडिएशन पैटर्न कैसा हो गया? इसका डायरेक्शनल हो गया। डायरेक्शनल का मतलब समझ में आया? डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना। दूसरे डायरेक्शन में बहुत कम रेडिएशन होता है। इससे पहले का जो भी हम लोग ने रेडिएशन पैटर्न देखे ना, वो कैसा देखे? एकदम सेम बराबर रहता था, बाय डायरेक्शन में एकदम सेम बराबर रहता था। लेकिन अभी क्या हो गया? एक डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन है और एक डायरेक्शन में क्या हो गया? मिनिमम रेडिएशन है। ठीक है, बात समझ में आ। और वो पीछे की तरफ होता है, बैक साइड की तरफ होता है, तो उसको बोलते हैं बैक लोब, माइनर लोब। ये जो लोब का मतलब हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? जो डायरेक्शन में आप फोकस करा रहे हो, जो डायरेक्शन में आप एंटेना को फोकस करा रहे हो, जहाँ पे एंटेना आपका मैक्सिमम रेडिएट करना चाहिए या मैक्सिमम रिसीव करना चाहिए एनर्जी को, तो वो फ्रंट साइड बोला जाता है। फ्रंट साइड बोला जाता है, या जो बड़ा रेडिएशन है, उसका रेडिएशन बड़ा है, तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं? मेजर लोब। और जिस डायरेक्शन में रेडिएशन इस एंटेना का कम होता है और उसके अपोजिट में होता है, पीछे की तरफ होता है, तो उसको कहते हैं बैक लोब, माइनर लोब। और साइड साइड में भी कुछ रेडिएशन होंगे थोड़े बहुत, तो उस सबको क्या कहते हैं? साइड लोब बोलते हैं। तो देखो ये हो रहा क्यों है, ये किस तरीके से हो रहा है। मैं जैसे कि आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि यागी-उदा एंटेना जो है वो मॉडिफिकेशन किया हुआ है। किसके ऊपर मॉडिफिकेशन किया हुआ है? फोल्डेड डायपोल एंटेना के ऊपर मॉडिफिकेशन किया हुआ है। फोल्डेड डायपोल एंटेना का हम लोग ने रेडिएशन पैटर्न क्या देखे थे? फोल्डेड डायपोल एंटीना का हम लोग ने रेडिएशन पैटर्न सिंपली क्या देखे थे? एक फिगर ऑफ 8 देखे थे। क्या देखे थे? फिगर ऑफ 8 देखे थे। फिगर ऑफ 8 का मतलब क्या था? कि दो अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है? मैक्सिमम रेडिएट करता है। ठीक है ना? तो फोल्डेड डायपोल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न हम लोग ने ये देखे थे कि दो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएट करता है। अब हम लोग ने क्या किए, इस फोल्डेड डायपोल एंटीना में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लगा दिए, जो डायरेक्टर्स लगा दिए और रिफ्लेक्टर लगा दिए। अब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट लगाने की वजह से क्या हो रहा है? जो फोल्डेड डायपोल एंटीना का दो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोकस था, उस दो अपोजिट डायरेक्शन में से अब हम लोग ने क्या कर दिया? सिर्फ एक डायरेक्शन में मैक्सिमम फोकस कराने लगा दिए। समझ में आई बात? पहले क्या हो रहा था? फोल्डेड डायपोल एंटीना दो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम एनर्जी को रेडिएट करता था या वहां से उसको रिसीव करता था। अब हम लोग ने इसी फोल्डेड डायपोल एंटीना में ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को लगा के इसका फोकस ना अभी क्या कर दिए? एक डायरेक्शन में मैक्सिमम कर दिए। तो ये डायरेक्टर का काम क्या है? ये काम इसका यही है कि मैक्सिमम एनर्जी को क्या करना? वांटेड सिग्नल को रिसीव करना। वांटेड सिग्नल को रिसीव करना मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन में आपको सिग्नल को रिसीव करना या ट्रांसमिट करना है, सिर्फ उसके बारे में ये फोकस करेगा। और पीछे रिफ्लेक्टर लगाने का मतलब ये होता है, जो दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा था या ट्रांसमिशन हो रहा था या रिसेप्शन हो रहा था, उसको रिजेक्ट करेगा। तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप फोकस बढ़ गया है। ये एलिमेंट्स को लगा के क्या हो गया है? एक ही डायरेक्शन में आप फोकस बढ़ गया है। तो जहां पे फोकस बढ़ गया है उसको कहते हैं मेजर लोब। जहां पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है या जो डायरेक्शन में सिर्फ आपको फोकस कराना है कि मुझे सिर्फ यही डायरेक्शन से ना एंटेना को ट्रांसमिट कराना है और यही डायरेक्शन में मेरे को एंटेना का मैक्सिमम एनर्जी रिसीव कराना है। और उस तरफ जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो क्या हो गया? अभी मॉडिफाई हो गया। ये डायरेक्टर रिफ्लेक्टर की वजह से जो पहले डायपोल एंटीना का रेडिएशन मैक्सिमम था, अब वो क्या हो गया? कम हो गया। घट के क्या हो गया? कम हो गया। तो इसलिए ये सब क्या बन गया?
बैक लोब हो गए, माइनर लोब हो गए, साइड लोब हो गए। इसीलिए यागी उदा एंटेना को याद रखो, यागी उदा एंटेना को कहते हैं यूनी डायरेक्शनल एंटेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, यागी उदा एंटेना को क्या कहते हैं हम लोग? यूनी डायरेक्शनल एंटेना। यूनी डायरेक्शनल का मतलब समझ लो, यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये होता है जो एंटेना सिर्फ एक डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएट करता है। इससे पहले वाले एंटेना जो समझाया मैंने, डायपोल एंटेना, हाफ वेव डायपोल एंटेना, लूप एंटेना या टेलीस्कोपिक एंटेना, ये सारे एंटेना बाय डायरेक्शनल थे। बाय डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि दो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम एनर्जी को रेडिएट करना। समझ में आया? मैक्सिमम एनर्जी को रेडिएट करना दो अपोजिट डायरेक्शन में, उन एंटेना को बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। लेकिन अब जो मैं एंटेना का वर्किंग समझाया, जो एंटेना के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया यागी उदा एंटेना के बारे में, ये एंटेना यूनी डायरेक्शनल एंटेना है। यूनी डायरेक्शनल एंटेना इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एंटेना एक डायरेक्शन में मैक्सिमम एनर्जी को रेडिएट करता है या रिसीव करता है। एंटेना का काम आप तो पता ही है ना, ट्रांसमिट एंड रिसीव। तो ट्रांसमिट मतलब रेडिएट करना, रिसीव मतलब एनर्जी को रिसीव करना। तो इसका एक डायरेक्शन में मैक्सिमम फोकस होता है, बाकी के अपोजिट डायरेक्शन में और साइड डायरेक्शन में बहुत कम होता है। इसलिए थोड़ा सा इधर पे दिखाया गया आपको, बैक लोब बोल के दिखाया गया और साइड लोब करके दिखाया गया। तो क्लियर है? अभी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? बात क्लियर है? समझ में आई बात? क्या एक्सप्लेनेशन दिया मैंने? Everybody? हाँ सर, यस सर। Okay, so everybody getting to radiation pattern of this antenna is unidirectional in nature। unidirectional nature है क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन में मैक्सिमम फोकस होता है। तो इसके रेडिएशन पैटर्न के बारे में आपको यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेनेशन दी हुई है। द रेडिएशन पैटर्न ऑफ यागी उदा एंटेना इज मॉडिफाइड फिगर ऑफ 8। समझ में? मॉडिफाइड फिगर क्यों लगाया? क्योंकि ये मॉडिफाई हो गया ना, फिगर ऑफ 8 से मॉडिफाई हो गया। पहले फिगर ऑफ 8 था, अब उसमें मॉडिफिकेशन हो गया। वन इज मेजर लोब, वन इज माइनर लोब एंड सम साइड लोब। तो ये फिगर ऑफ 8 से मॉडिफाई किया गया है। रेडिएशन पैटर्न इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि एक डायरेक्शन में ही फोकस करना। इट कंसिस्ट ऑफ सम लार्ज फ्रंट, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज फ्रंट लोब एंड स्मॉल बैक लोब। तो लार्ज वाला फ्रंट लोब है और पीछे के जो लोब है उस बैक लोब बोलते हैं, साइड लोब बोलते हैं, माइनर लोब बोलते हैं। तो ये रेडिएशन पैटर्न ऑफ डायपोल एंटीना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ डायरेक्शनल एंटीना, डायरेक्शनल एंटीना है और ये इसका कंस्ट्रक्शन था और ये इसका वर्किंग था। एडवांटेजेस क्या हो गए? अभी क्यों किया गया ये सब ऐसा? एडवांटेजेस इसलिए किया गया क्योंकि जो डायपोल एंटीना का गेन कम था, वो गेन को थोड़ा हम लोग ने क्या किया, बढ़ा दिए। मॉडरेट गेन हो गया है, एकदम हाई गेन भी नहीं हुआ है। डायरेक्टर्स और रिफ्लेक्टर को लगा के इसका गेन जो है वो मॉडरेट गेन हो गया है। यूनी डायरेक्शनल एंटेना, तो यूनी डायरेक्शनल का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, जो एंटेना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम एनर्जी को रेडिएट करता है या रिसीव करता है उसको यूनी डायरेक्शनल एंटेना बोलते हैं। यानी इसका फोकस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ज्यादा होता है। यानी अब ये डायरेक्शन कौन सा है? 0 डिग्री, तो सिर्फ 0 डिग्री के एंगल पे ही ज्यादा फोकस करेगा। बाकी के कोई भी एंगल पे देख लो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, उन अलग अलग एंगल में, उन अलग अलग डायरेक्शन में उसका रेडिएशन फोकस नहीं उतना। सिर्फ एक ही एंगल, एक ही डायरेक्शन में उसका फोकस सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए उसको क्या कहते हैं? यूनी डायरेक्शनल एंटेना कहते हैं। बैंडविड्थ इसकी बढ़ गई, मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो ऑपरेट करने की रेंज थी वो फ्रीक्वेंसी की रेंजेस बढ़ गई। दैट्स वाई इसकी बैंडविड्थ क्या हो गई? हाई हो गई। डिसएडवांटेजेस में क्या दिया हुआ है? गेन इज नॉट वेरी हाई। गेन बड़ा है सिर्फ, लेकिन मॉडरेट हुआ है, इतना ज्यादा हाई भी नहीं हुआ है। तो वो डिसएडवांटेजेस में पॉइंट में दिया हुआ है, गेन इज नॉट वेरी हाई। लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, ये एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? कि यागी उदा एंटेना में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आगे डायरेक्टर लगाना पड़ता है, पीछे रिफ्लेक्टर लगाना पड़ता है। तो ये सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए। सो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन देख लो इसका कहाँ पे यूज होता है। तो एप्लीकेशन, इट इज यूज एट हाई फ्रीक्वेंसी एज टीवी रिसीव एंटेना। तो मैं जैसे कि मैं आपको बताया कि ओल्डर एज में हम लोग, अपने चाइल्डहुड एज में हम लोग यही एंटेना को हम लोग देखते थे जब टीवी सिग्नल रिसीव करना होता था। तो ऊपर हम लोग टेरिस पे यही टाइप के एंटेना को माउंट किया जाता था। तो यूज एट हायर फ्रीक्वेंसीज एट टीवी रिसीव एंटेना। इट इज यूज इन कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, CAS। तो एक टाइप का सिस्टम है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, CAS में भी ये टाइप का एंटेना यूज होता है। मेनली तो आप लोग ये याद रखो, फॉर टीवी रिसेप्शन पर्पस ये टाइप का एंटेना मेनली यूज होता था फॉर रिसीविंग हायर फ्रीक्वेंसी। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपके सामने कुछ एंटेनास के टॉपिक को कवर किया।
आज के लेक्चर में हम लोग ने जो जो एंटीना को देखे वो कौन कौन से टाइप के एंटीना को देखे। सबसे पहले तो हम लोग ने लूप एंटीना को देखे, लूप एंटीना के बारे में अंडरस्टैंड किए। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ बाई डायरेक्शनल एंटीना ओनली। लूप एंटीना जो है वो बाई डायरेक्शनल टाइप का एंटीना का ही एग्जाम्पल है जिसका रेडिएशन पैटर्न बाई डायरेक्शनल नेचर होता है। तो लूप एंटीना को कवर किए। देन आफ्टर दैट हम लोग ने टेलीस्कोपिक एंटीना को कवर किए विच इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम एज मार्कोनी एंटीना। सो टेलीस्कोपिक एंटीना के बारे में हम लोग ने कंप्लीट किया, अंडरस्टैंड किए। Then in the later in the end we have completed the type very important type of antenna. It is Yagi-Uda antenna which is a example of unidirectional antenna. बहुत important, याद रखना, डायरेक्शनल एंटीना बोलो या यूनिडायरेक्शनल एंटीना बोलो तो कौन सा टाइप एंटीना है वो यागी-उदा। मैं क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, विच एंटीना इज नोन एज डायरेक्शनल एंटीना, कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल एंटीना। मैं आपको ऐसा पूछूंगा, क्या तुम्हारे पास कोई एग्जांपल है डायरेक्शनल एंटीना का, कैन यू गिव वन एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल एंटीना। तो यस, यागी-उदा एंटीना इज अ एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल एंटीना। डायरेक्शनल एंटीना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फोकस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। तो यूनि डायरेक्शनल बोलिए, डायरेक्शनल बोलिए, वो एग्जांपल एक यागी-उदा एंटीना है जो हम लोग ने आज उसके बारे में अंडरस्टैंड किया, उसके कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड किए, उसके रेडिएशन पैटर्न को अंडरस्टैंड किए, और इन द एंड वी हैव एंडेड विद एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ यागी-उदा एंटीना. So in the next lecture we are going to end this chapter with the microwave type of antennas. तो next lecture जो रहेगा वो अपना last lecture रहेगा इस particular subject का, PEC subject का, जिसमें हम लोग last unit के last topic को cover करेंगे, microwave antennas को cover करेंगे. ओके, सो इसी तरीके से आपका ये आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ. अगर कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगा, कुछ डिफ़िकल्टी है, डाउट है, तो आप लोग ज़रूर मुझसे मैसेज करो, कमेंट करो. डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन. और इसी तरीके से फिर ध्यान दो, पढ़ाई करो, स्टडी करो, टाइम दो थोड़ा घर पे. प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टडी वेल. थैंक यू वेरी मच.